کے شرح میں لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ رسول اکرام وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس نے روایت کیا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایصال ثواب کرتے ہیں، کیا صدقات کا ثواب، کیا خیرات کا ثواب، کیا قرآن خوانی کا ثواب، کیا آیات قرآنی کا ثواب، کیا تلاوت ربانی کا ثواب، کیا شیرنی پانی کا ثواب، کلمہ خوانی کا ثواب، میلاد خوانی کا ثواب ہمارے مرحوم کو پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا ہے؟ حضرات محترم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں انس، نام یا انس، ہاں ضرور پہنچتا ہے۔ یہاں رک کر کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اے مختوم پور کے مسلمانوں، اپنے ذہن نشی کر لو، عقیدہ صاف کرتے چلو اور ایمان کا چراغ اپنے دلوں میں روشن کرتے چلو۔ یاد رکھو کہ مومن کا ایصال ثواب مومن کو پہنچتا ہے، مومن کا ایصال ثواب مومن کو پہنچتا ہے۔ یاد رکھیے، مومن کا ایصال ثواب مومن کو پہنچتا ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں، جناب ڈاکٹر مستقیم صاحب کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد مولانا کوثر رضا صدیقی نے کہا مستقیم صاحب مرحوم مغفور، اور علماء نے کہا مرحوم مغفور۔ آپ کو یہ پتا کیسے چلا، آپ کو یہ کنفرم کیسے ہو گیا کہ وہ مرحوم ہو گئے؟ ان پر رحم کیا گیا، ان پر رحم کیا گیا۔ یہ رحم چھپی ہوئی چیز ہے، ظاہری کیفیت کا نام نہیں ہے، اندرونی کیفیت کا نام ہے، باطنی کیفیت کا نام ہے۔ آپ کو معلوم کیسے چلا، آپ کو پتا کیسے چلا، آپ کو ہویتا اشکارا اسپشٹ اور کلیئر کیسے ہوا کہ ان کے والد مرحوم ہیں، ان پر رحم کیا گیا ہے؟ آئیے حدیث پاک کی روشنی میں آپ کے دل و دماغ کی چراغ کو روشن کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی معلومات کے میز پر اضافہ کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر مستقیم صاحب یقیناً مرحوم ہے۔ اس لیے مرحوم ہے کہ کسی میڈیا کی بولی نہیں ہے، کسی دنیا دار کی بولی نہیں ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی بولی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ امتی امت مرحومہ، یعنی میری امت امت مرحومہ ہے، میری امت امت مرحومہ ہے۔ تو پتا کیا چلا کہ ہماری سرکار کی امت میں جو مرحوم ہے اسے مرحوم کوئی اور نہیں کہا بلکہ مصطفیٰ جان رحمت نے کہا۔ میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں پیارے، آج یہ اکثر بات چلتی ہے کہ وہ ایصال ثواب نہیں پہنچتا، یہ قرآن خوانی بیکار ہے، یہ تیجا اور 40واں کرنا بیکار ہے، یہ قرآن خوانی کا ثواب نہیں ملتا۔ میں بتانا چاہتا ہوں پیارے، آیات قرآنی کا ثواب، تلاوت ربانی کا ثواب یقیناً مرحوموں کو ملتا ہے، مردوں کو ملتا ہے۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں مردوں کے بارے میں آپ یقین کر لیجئے، جب تک آپ زندہ رہتے ہیں آپ کی عزت نہیں ہوتی، آپ کی عزت نہیں ہوتی سماج کے اندر، لیکن جیسے انسان مر جاتا ہے، مومن کامل مر جاتا ہے، مرنے کے بعد ان کی عزتوں میں چار چاند لگ جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سب کے سب چار کاندھے پہ اٹھاتے ہیں، سب کاندھا بدل بدل کے لے کے جاتے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں پیارے، اتنے ناز کے ساتھ، اتنے نعم کے ساتھ، اتنے نخرے کے ساتھ، اتنے اچھے انداز میں، اتنے پیارے انداز میں کفنا کر، نہلا کر، دھلا کر اور عطر لگا کر، کندھوں میں بدل بدل کر قبرستان لے کے جاتے ہیں۔ پتا کیا چلا؟ جب تک زندہ رہے، کہا گیا ڈاکٹر صاحب ہیں، جب تک زندہ رہے اگر کوئی جو کام کرتا رہا ان کے ساتھ وہی کام کے ساتھ پیش آتا رہا، لیکن جیسے انتقال ہو گیا پتا کیا چلا؟ سب نے کہا یہ مرحوم صاحب ہو گئے، فلاں صاحب انتقال کر گئے۔ میں کہنا چاہتا ہوں پیارے، مرنے کے بعد شان میں اضافہ ہو جاتا ہے، عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے، عزت میں بڑھوتری ہو جاتی ہے۔ کیوں بڑھوتری ہوتی ہے؟ اس لیے کہ مرنے کے بعد میں آپ سے کہنا چاہوں گا، آپ زندہ رہتے ہو، کبھی خالہ سے ملاقات کرتے ہو، کبھی خالو سے ملاقات کرتے ہو، آپ زندہ رہتے ہو، کبھی سسور سے ملتے ہو، کبھی ساس سے ملتے ہو، کبھی داماد سے ملتے ہو، کبھی سالو سے ملتے ہو۔ جب زندہ رہتے ہو دوست سے ملتے ہو، یار سے ملتے ہو، مفتی سے ملتے ہو، عالم سے ملتے ہو۔ میں کہنا چاہتا ہوں جب تک زندہ رہے تو زندوں سے ملاقات کرتے رہے، جب تک زندہ رہے دوست کی ملاقات ہو گئی، لیکن جب مر گئے تو دوست کی ملاقات نہیں، ماموں کی ملاقات نہیں، شاہوں کی ملاقات نہیں، داماد کی ملاقات نہیں۔ مرنے کے بعد قبر میں کسی کی ملاقات ہوتی ہے تو دنیا دار کی ملاقات نہیں، مدینے کے تاجدار کی ملاقات ہوتی ہے۔ بولو بات صحیح ہے کہ نہیں؟ بولو بات صحیح ہے کہ نہیں؟ قبر میں کس کا چہرہ دکھایا جاتا ہے؟ سرکار دو عالم کا نا۔ تو مرنے کے بعد کن کا چہرہ دیکھا گیا، کن کا دیدار ہوا؟ مصطفیٰ جان رحمت کا۔ آپ بہت سارے روپیہ پیسہ خرچ کر کے آپ مدینہ شریف جاتے ہو نا، مکہ شریف جاتے ہو نا، اور یہ للم پہاڑی کو دیکھتے ہو نا، طواف کعبہ کرتے ہو نا، رب یہ جمار کرنے کے پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، شیطان کو کنکری مارنے کے پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، صفا و مروہ کے درمیان چکر لگانے کے لیے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ لیکن حضرات محترم، آپ نے ویزا بنایا، آپ نے پاسپورٹ
हासिल किया, वीजा बनाया, 4 लाख 5 लाख रुपए जमा किया, 4-5 लाख जमा करने के बाद आप जो है यहाँ से सफर करते हैं, जद्दा पहुंचते हैं, जद्दा पहुंचने के बाद मक्का पहुंचते हैं, मक्का पहुंचने के बाद क्या देखा आपने? खाने काबा देखा आपने, यलमलम देखा आपने, मताफ देखा आपने, रबिए चिमार किया आपने, सही किया आपने, तवाफ किया आपने, और सफा मरवा के दरमियान चक्कर लगाया आपने, मस्जिद निमरा देखा आपने, मस्जिद जेराना देखा आपने, मस्जिद आशा देखा आपने, मस्जिद बिलाल देखा आपने, और हज करने के बाद जो है आप ये सब देख लेते हो, मदीने शरीफ पे जाते हो, मदीने शरीफ पे जाने के बाद वहां की गलियों का मंजर देखते हो, सर उठा के आपने देखा, गुंबद खजरा देखा, सर झुकाया तो नबी का रौजा देखा। मैं कहना क्या चाहता हूं, जो पॉइंट आपके दिमाग में डालना चाहता हूं, जो बात आपके दिलो दिमाग में उतारना चाहता हूं, बात यह है कि जब तक जिंदा रहे, पैसा खर्च करते रहे तो गुंबद खजरा देखा, सर उठाया तो गुंबद खजरा देखा, नजर झुकाया तो नबी का रौजा देखा, लेकिन मरने के बाद कब्र में गए न गुंबद खजरा देखा न नबी का रौजा देखा। क्या देखा? नबी का चेहरा देखा, नबी का चेहरा देखा। तो बताओ मरने के बाद फायदा है कि नहीं है? फायदा है कि नुकसान है? फायदा। अरे फायदा है कि नुकसान है? फायदा। फायदा है कि नहीं है? तो मौत की याद जैसे आती है हम घबरा जाते हैं, हम बेचैन हो जाते हैं, हम बेकरार हो जाते हैं, हम सहम जाते हैं, हम बिल्कुल डर जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं प्यारे, मौत इज्जत में इजाफा कर देती है, मौत की याद इंसान को गुनाहों से बचाती है, मौत की याद इंसान को जो है पड़ोसी के हुकूक मारने में जो है रोक देती है, मौत की याद ज़िनाकारी से बचाती है, मौत का तसव्वुर गुनाहों से बचाती है, मौत का तसव्वुर नाक तौल में कमी करने से बचाती है, मौत का तसव्वुर, मौत का ख्याल, मौत की याद जो है हर तरह के तमाम तर गुनाहों से बचाती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं प्यारे, आप मौत को याद करें। जब आप मौत को याद करेंगे तो आपसे नमाज तक नहीं होगी। जब आप मौत को याद करेंगे आप नाप तौल में कमी नहीं करेंगे। जब आप मौत को याद करेंगे उलमा के खिलाफ सवाल दाम तराश नहीं करेंगे। जब आप मौत को याद करेंगे बीवी के चेहरे पे नहीं मारेंगे। जब आप मौत को याद करेंगे गाली गलौज नहीं करेंगे। जब आप मौत को याद करेंगे किसी के खिलाफ बकवास नहीं करेंगे। जब आप मौत को याद करेंगे किसी के खिलाफ आप शरीयत नहीं रचेंगे। जब आप मौत को याद करेंगे बिना वजह झूठा मुकदमा नहीं करेंगे। जब आप मौत को याद करेंगे तो आप समाज सेवा करेंगे। जब आप मौत याद करेंगे तो आप खिदमत खल्क करेंगे। जब आप मौत को याद करेंगे मस्जिद के करीब होंगे, खानकाह के करीब होंगे, मदारिस इस्लामिया के करीब होंगे। जब आप मौत को याद करेंगे कुरान की तिलावत करेंगे। जब आप मौत को याद करेंगे तो मौत को याद करेंगे तो माँ बाप की खिदमत करेंगे। जब आप मौत को याद करेंगे तो अल्लाह की इबादत करेंगे, गुनाहों से नफरत करेंगे और नेकियों से मोहब्बत करेंगे। बोलो बात सही है कि नहीं? सही है। सही है ना? वजह क्या है? ये दुनियादारी, दुनिया की रंगीनियां, दुनिया की रेलमरेल, दुनिया की मस्तियां हमें मौत से गाफिल करती है। जब तक आप मौत को याद नहीं करेंगे, मौत का तसव्वुर आपके ज़हन फिक्र में नहीं आएगा, मौत का ख्याल नहीं आएगा, तो आप गुनाहों से कैसे बचेंगे? ये बताइए, इस वक्त आलमी सतह पर, यूनिवर्सल सतह पर, बैनुल-अक़वामी सतह पर इस बात का तज्ज़िया करें कि कितने परसेंट मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, तो बहुत मुश्किल से 2%। मरना सबको है। अभी रघुवीर चौक के इमाम ने खिताब किया ना, हर चीज़ में इख्तिलाफ है, कहीं मौत पे किसी का इख्तिलाफ नहीं। अच्छा कलाम भी पढ़ा, अच्छा खिताब भी किया माशाअल्लाह। लेकिन मौत जब बरहक है, मरना सबको है, तो किसी का कोई एतराज़ नहीं, मौत से कोई अट बट किंतु परंतु अगर मगर नहीं। मौत जब मरना ही है, मौत आनी ही है, तो हमने मौत की तैयारी कर दिया। आज देखिए पूरी दुनिया में सबसे अगर जाहिल कौम किसी कौम को कहा जाता तो हमारी कौम है। जिस कौम के नौजवानों के हाथों में लोग लाठी और तलवार दे रहे हैं वो हमारी कौम है। जिस कौम के हाथों से कलम की ताकत छीनने की कोशिश की जा रही है वो हमारी कौम है। सबसे ज़्यादा अनपढ़ हमारी कौम, सबसे ज़्यादा लठैत हमारी कौम, सबसे ज़्यादा डकैत हमारी कौम, सबसे ज़्यादा झूठा अय्यार मक्कार हमारी कौम। वजह क्या है? वजह क्या है? क्या मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इसी बात की तालीम दी, जिस कौम की शुरुआत इक़रा से हुई हो वो कौम जाहिल रह जाए? ये बात समझ में नहीं आती।
जिस कौम को मौत का तसव्वुर दिया गया हो वो कौम मौत को याद न करे, ये बात समझ नहीं आती। 5 वक्त की नमाजें फर्ज हैं, हम नमाजों को तर्क करते, ये बात समझ में नहीं आ रही। आखिर वजह क्या है? हमारे दिल से खौफ खुदा क्यों निकल गया? हमारे दिल से खौफ खुदा क्यों निकल गया? खशियत रब्बानी कैसे निकल गई? आपको मालूम होना चाहिए। शेर शाह सूरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिनका मज़ार पाक इसी सासाराम के अंदर है, शेर शाह सूरी जिन्होंने जीटी रोड बनाई है, उनकी तारीख आप पढ़ के सुनोगे, आप पढ़ोगे, आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कौन शेर शाह सूरी। वो शेर शाह सूरी जो दुर्वेश कामिल भी है, वक्त के शहंशाह भी हैं, बहुत बड़े बादशाह भी हैं, बहुत बड़े बड़े कीर्तिमान, बड़े बड़े कारनामे, बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां उन्होंने हासिल की हैं, जिनकी यादगार जीटी रोड है, सासाराम के अंदर उनका मज़ार पाक है। वही शेर शाह सूरी रहमतुल्लाह तआला अलैह हैं। शेर शाह सूरी रहमतुल्लाह अलैह की आदत करीमाना ये थी कि रात के तिहाई खड़े होते और आप जो है अल्लाह की रजा की खातिर नमाज पढ़ते, कुरान पाक की तिलावत करते। उनके वजीर का कहना है कि मेरे दिल में, मेरे दिलो दिमाग में तशकीक का मैं शिकार हो गया, कंफ्यूजन हो गई। मैंने क्या सोचा कि मैं देखना चाहता हूँ कि वक्त का शहंशाह रात के अंधेरे में कहाँ जाता है, रात के अंधेरे में कहाँ जाता है। कहीं अय्याशियों के अड्डे में तो नहीं जाता, कहीं अय्याशियों के बिस्तरे में तो नहीं जाता। मेरे शहंशाह के बारे में मेरे दिलो दिमाग में ख्याल आया। अपने ख्याल को दूर करने के लिए मैं उनके पीछे हो लिया। हज़रात मोहतरम शेर शाह सूरी रहमतुल्लाह अलैह रात के आखिरी पहर में अपने बिस्तर से उठते हैं, लोटा लेते हैं, पानी लेते हैं, निकल जाते हैं मस्जिद की तरफ। उनका वजीर उनका पीछा करता है। हज़रात मोहतरम उनके वजीर का कहना है कि मैं क्या देखता हूँ कि मेरा बादशाह, मेरा वक्त का शहंशाह मस्जिद में हाजिर है और मस्जिद में हाजिर होने के बाद नमाज नहीं पढ़ता, तिलावत कुरान नहीं करता, तस्बीह नहीं हिलाता, कुछ और नहीं करता, बल्कि मस्जिद पे झाड़ू लगा रहा है, मस्जिद पे झाड़ू लगा रहा है। हज़रात मोहतरम वजीर ने कहा मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, मैं क्या कहता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ, मैं ये क्या देख रहा हूँ। मैंने कहा सरकार ये काम आपका नहीं है। दिन के उजाले में हुकूमतों के फैसले करते हैं, वक्त के शहंशाह आप हैं, वक्त के बादशाह आप हैं, हाकिम वक्त आप हैं। इतने बड़े शहंशाह होकर, इतने बड़े बादशाह होकर रात की तन्हाई में मस्जिद में आकर के झाड़ू क्यों लगाते? झाड़ू लगाना हमारा काम है, वजीरों का काम है, नौकरों का काम है, ये आप खुद क्यों करते हैं? जवाब सुनिए, जवाब। अगर आपके सीनों में धड़कता हुआ दिल है, आपकी आंखों में अश्क है, आंसू के कतरात हैं, उस आंसुओं के कतरात को अपने निकालिए, अपने शरीर के अंदर झांकिए, अपने नफ्स के अंदर कंट्रोल कीजिए। आपका नफ्स मोटा हो चुका है, हर चीज पे अनानियत, हर चीज पे घमंड, हर चीज पे तकब्बुर, हर चीज पे तकब्बुर। आज तकब्बुर का दौरा है। आलिम को देखो तो तकब्बुर, खिताबत का तकब्बुर, खिताबत का घमंड, नकाबत का घमंड, इमामत का घमंड, किरत का घमंड, दौलत का घमंड, हर तरफ घमंड का नशा है। मैं कहना चाहता हूं प्यारे, वक्त का शहंशाह, अपने वक्त का बादशाह हजरत शेर शाह सूरी का जवाब सुनो, जवाब सुनो, जवाब। उन्होंने क्या जवाब दिया? ए मेरे वजीर ये बता, अगर मैं झाड़ू लगाने के लिए तुम्हें दे दूं तो बताओ कल कयामत के दिन इसका अज्र, इसका सवाब, इसकी नेकी क्या तुम मुझे दे दोगे? तो वजीर ने कहा नहीं सरकार, ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता। तब शेर शाह सूरी ने जवाब दिया था कि मैं दिन के उजाले में हुकूमतों के फैसले करता हूँ खिदमत खल्क के लिए, और रात की तन्हाई में मस्जिद पे झाड़ू लगाता हूँ अपने मौला की रजा के लिए। तकरीरें बहुत सुन चुके हैं आप, सुनते ही रहते हैं उलमा से, अमल कहीं नहीं है। अखलाक में जो गिरावट है हमारी कौम में, किरदार में जो गिरावट है हमारी कौम में, हमारी कौम की ज़बानें इतनी लंबी हो गई हैं। भैया सबसे पहले अपनी ज़बानों पर कंट्रोल करो, ज़बानों पे, और अपने जनाजों को बेहतर करो, जनाजों को, और अपनी तन्हाइयाँ बेहतर करो, तन्हाइयाँ। रात की तन्हाई, बंद कमरे में तेरे मोबाइल के स्क्रीन में क्या चल रहा है सारी दुनिया जानती है।